To address the press conference here today, we have our venerable guest, the Chief Secretary of Jammu and Kashmir, Shri Atal Duluji, with me. We also have Shri M. Raju, Commissioner Secretary of the Information Department, Jammu and Kashmir. I welcome you both, sir. Pragati, Proactive Governance and Timely Implementation, is a flagship platform of the Government of India that is being closely monitored by the Cabinet Secretary as well as the Prime Minister himself. The aim is basically to fast-track the long-pending projects through close coordination of the centre and state, as well as to remove any bottlenecks or any differences that are there in the implementation, and to expedite clearances through multiple agencies. I'd like to put it on record that over the years, Pragati has been changing the way in which governance is being delivered by making it more time-bound, by removing the differences, the clearance, and expediting the clearances, as well as closer collaboration between the centre and the state governments. The aim has been to reduce the delays and the cost overruns, to improve the decision making and making it faster, as well as to bring in systematic reforms in public policy. Just to give you all a little bit of background regarding Pragati, I'd like to mention that in 2003, it was the brainchild of the Prime Minister himself, who was then the Chief Minister of the state of Gujarat. The precursor of Pragati was Swagat, statewide attention on grievances by application of technology. मैं बताना चाहूँगी ये जो स्वागत प्लेटफॉर्म है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर जो कस्टमर्स थे वो अपनी कंप्लेंट्स 2003 की मैं बात कर रही हूँ अपनी कंप्लेंट्स जो थे वो फाइल कर सकते थे साथ ही वो ये देख सकते थे कि क्या डिसीजंस किए जा रहे हैं उस पर्टिकुलर कंप्लेंट से रिलेटेड और इसके साथ वो जो हमारे कंसर्न्ड ऑफिशियल्स होते थे उनके साथ वार्ता भी कर सकते थे बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन और रेजोल्यूशन ऑफ देयर कंप्लेंट्स. Coming to 2014, when the Pragati platform was launched, इसका initial aim सिर्फ public grievances को solve करना नहीं था, because the mandate had been expanded to including more complex projects, especially जिसमें center और state में आपस में coordination की कुछ कमी आ रही थी और अलग-अलग departments silos में काम कर रहे थे. आज तकरीबन कुछ दिन पहले 31 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 50th मीटिंग है प्रगति की वो ली है और उसमें एक स्पेशल एम्फेसिस प्लेस किया गया है ऑन द सोशल प्रोजेक्ट अपार्ट फ्रॉम जो बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसके अलावा भी स्पेशली प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन एंड ऑल. One of the most significant features of Pragati is center-state coordination. That is why you see Chief Secretary sir with us under the banner of the Press Information Bureau of the Government of India. मैं ये कहना चाहूँगी कि इसकी जो इनकी रेगुलर मीटिंग्स और रेगुलर जो एक रिव्यू मैकेनिज्म इसका बनाया गया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है जिसमें सेक्रेटरीज जो भारत सरकार के यूनियन गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरीज और स्टेट्स और यूटीज के जो चीफ सेक्रेटरीज है वो साथ मिल करके इन बॉटलनेक्स को हटाने की कोशिश करते हैं एंड इट इज मॉनिटर्ड बाय एज आई सेड द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ. Just to give you a few figures related to Pragati, from its inception, projects that have been expedited are worth around 86 lakh crores and around 377 projects have been reviewed since the inception of Pragati. Out of 3,162 identified issues, around 2,958 issues have been resolved, which is around 94%. प्रगति के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इंक्लूड किए गए हैं ऑल ओवर इंडिया दैट इंक्लूड द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भिलाई स्टील प्लांट्स एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ऑल्सो द थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स इन एमपी एंड छत्तीसगढ़. कमिंग टू आवर ओन JNK, जो यहाँ पर हमारा जम्मू उधमपुर श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है वो भी प्रगति के अंदर ही एक्सपीडिएट किया गया था. आई वुड नाउ रिक्वेस्ट Chief Secretary sir to kindly shed light on all the projects under Pragati that have been expedited with this platform, after which we'll be taking questions from you all. मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि जो questions आप लोग करेंगे please keep it specific related to Pragati itself. Sir, kindly for your remarks. प्रगति की 50वीं बैठक के उपरांत आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में
आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। प्रगति, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार का एक प्रमुख समन्वय मंच है। इसके माध्यम से बड़े प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और जन शिकायतों की हर महीने प्रधानमंत्री जी द्वारा रियल टाइम समीक्षा की जाती है। जम्मू कश्मीर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है। इसमें सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, उद्योग, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि शामिल है। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, यूटी प्रशासन और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के बीच समन्वय जरूरी है। यूटी सरकार भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, यूटिलिटी शिफ्टिंग और कानून व्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। भारत सरकार के 500 करोड़ या उससे अधिक लागत की परियोजनाओं की निगरानी एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप करता है, पीएमजी, और उन्होंने इस मॉनिटरिंग के लिए एक पीएमजी पोर्टल भी बनाया है। यह निगरानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और विभिन्न विभागों के मंत्रीगण द्वारा की जाती है। इससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से चलाने और जमीनी स्तर की अड़चनों को हल करने में मदद मिलती है। इसमें नियमों, मंत्रालयों और केंद्र और राज्यों में समन्वय से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है। जम्मू कश्मीर में पीएमजी पोर्टल पर 61 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लागत 4,12,000 करोड़ है और इनकी निगरानी हो रही है। ये प्रोजेक्ट्स कनेक्टिविटी, ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इन 61 प्रोजेक्ट्स में से 15 प्रोजेक्ट्स जिनकी राशि 69,000 करोड़ रुपए है पूरी हो चुकी है और जो बाकी 46 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लागत 3,43,000 करोड़ है और ये विभिन्न चरणों में निर्माणाधीन है। इसी पीएमजी पोर्टल में जो परियोजनाएं लिस्टेड हैं उनमें से जो हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रगति के प्लेटफॉर्म पर रिव्यू किया जाता है, जिसको ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वयं रिव्यू करते हैं। ये प्रगति एक ऐसा मंच है जो बड़े स्तर पर निगरानी करता है और जिम्मेदारी भी तय करता है। जम्मू कश्मीर में 15 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 1,12,000 करोड़ रुपए की है, उनकी निगरानी प्रगति के प्लेटफॉर्म पर हो रही है। प्रगति के जरिए भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन और पर्यावरण मंजूरी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। इससे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट्स को गति मिलती है। आज तक 15 प्रोजेक्ट से जुड़े 59 मुद्दों पर चर्चा हुई है और इनमें से 57 मुद्दे यानी 96% हल किए गए। और ये मुद्दे कौन से थे? लैंड एक्विजिशन के, पर्यावरण, वित्त पोषण और निर्माण से संबंधित थे। प्रगति का जो इम्पैक्ट रहा है जम्मू कश्मीर में, अगर उसकी चर्चा करें तो प्रगति के माध्यम से अभी तक 6 हाई प्रायोरिटी वाले प्रोजेक्ट्स जिनकी कुल रकम 53,000 करोड़ रुपए है पूरे किए गए हैं। जैसे जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम 1995 में शुरू हुआ था, जो 25 सालों तक धीमा रहा और प्रगति के बाद इसे तेजी मिली और ये पूरा हुआ। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में समन्वय की कई समस्याएं थी और उनको हल किया गया। किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की ट्रांसमिशन सिस्टम, इसमें भी कई बाधाएं आ रही थी और उनको भी हल किया गया और इस सिस्टम को चालू किया गया। एम्स जम्मू में यूटिलिटी शिफ्टिंग की समस्याओं को हल किया गया। नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर से बानिहाल का सेक्शन, इसमें भी कई बाधाएं थी, उनको दूर करके ये परियोजना भी शुरू की गई। आलस टैंक श्रीनगर द्रास करगिल खलसी लेह ट्रांसमिशन सिस्टम पूरा किया गया और इसको लद्दाख यूटी को सौंप दिया गया। 15 में से 6 प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो गए और बाकी 9 प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत 59,000 करोड़ रुपए है, ये प्रगति पर निगरानी में है। इसमें दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, एम्स अवंतीपोरा, पकल धुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत 4G कवरेज आदि शामिल है। इन प्रोजेक्ट्स की कुल 27 समस्याएं हल की गई हैं और 2 अभी शेष हैं। तो
ये प्रगति का जो हाई रेजोल्यूशन रेट है, ये साबित करता है कि प्रगति की व्यवस्थित निगरानी प्रणाली प्रभावी इफेक्टिव साबित हुई है। यूटी और जिला स्तर पर भी लगातार फॉलोअप किया जाता है। प्रगति के तहत बड़े प्रोजेक्ट्स के अतिरिक्त सामाजिक योजनाओं, सोशल सेक्टर की स्कीमों और जन शिकायतों, पब्लिक ग्रीवेंसेस की भी समीक्षा की जाती है। इससे ये एक पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस टूल बन गया है। प्रोजेक्ट्स के अलावा जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में 56 अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर, स्कीमों पर प्रगति के माध्यम से समीक्षा हो रही है और इन सब का उद्देश्य है कि समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं, एनी क्वेश्चंस यू कैन नाउ आस्क।